In this question, they are saying a bullet of mass 10 gram. So here we have a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of what? 150 meter per second. That means initial velocity is nothing but 150 meter per second. Strikes a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. ठीक है, तो strikes a rest like come to rest means final velocity is 0. एंड दिस ऑल टेक प्लेस मतलब जब वो उस वुडन बोर्ड के अंदर पेनिट्रेट करता है तो इट लास्ट ओवर देयर फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ हाउ मच 0.03 सेकेंड. ओके, so yes, they are asking calculate the distance of penetration. Distance पूछा है like into the block, and also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. So let's try to solve this. तो सबसे पहले जो हमारा the very first step is nothing but to note down all the given values. So whatever the given values we have उसको हम note करते हैं. Mass is given as how much? 10 gram. बच्चा I hope you guys are clear. आप 10 को किससे डिवाइड करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे and will be writing this as 0.0. Yes, very good. It would be nothing but 0.01 kg. First thing is done. Second thing, initial velocity is given as how much? 150 meter per second. Final velocity is nothing but 0 meter per second. Then time period is given as how much? 0.03 seconds. These are the given values. Okay, now they are asking you displacement for this, and also ये आपसे क्या पूछ रहे? Force पूछ रहे. Can I say मैं displacement के लिए second law use कर laws of motion use कर सकती, which is nothing but S is equals to ut plus half at square. Can we? Yes. No ना बच्चा, acceleration नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो? So we don't have acceleration. For that particular reason हम इस equation को use नहीं कर सकते. Yes, very good. We can go with the third law, that is nothing but v square, yes, is equals to u square plus twice of s. ये क्या? इसमें भी acceleration है. Yes, you guys are right. पहले हम acceleration find करेंगे, then only you can find the displacement, and finally हम क्या find कर सकते? Force find कर सकते. Okay, so that is the step, and force is nothing but mass into what? Acceleration. तो इसके भी केस में आपको क्या required होगा? Acceleration is required. So let's start with this. सबसे पहले हम acceleration find करते, which is nothing but v minus u upon t. What was the final velocity? 0 minus initial velocity, that is 150, divided by the time period of how much? 0.03. So can I say minus the something 150 and ये 0.03 है. Let's say I'm not good with decimal, तो मैं क्या करूँगी? decimals को हटाऊँगी. That would be something 3 और ऊपर कितना आ जाएगा? कुछ 100. Can I say ये 1 जा और ये कितने जा? 5 जा. सो या एक्सेलरेशन इस केस में कितना आएगा? माइनस इसलिए क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, वो स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है. एंड इट वुड बी -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर है? फर्स्ट. ओके, मूविंग फर्दर, चलो देखते हैं. कमिंग अप विद द सेकेंड वन. नाउ यू कैन गो विथ डिस्प्लेसमेंट, या तो आप फर्स्ट यूज़ कर लो, सेकेंड यूज़ कर लो, बट हम लाइक सॉरी नॉट फर्स्ट, यू कैन यूज़ सेकेंड लॉज ऑफ मोशन और थर्ड लॉज ऑफ मोशन, दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगे, यू कैन गो विद दैट. आई एम गोइंग विद द सेकेंड वन. सो कैन आई से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? यस बच्चा, यही होगा ना. So let's try to put the values. Initial velocity कितनी थी? Initial velocity was nothing but it was 150. Okay, initial velocity कितनी है हमारे पास? 150, and here the time is nothing but 0.03 सेकेंड. अच्छा, 0.03 सेकेंड को मैं और भी कुछ लिख सकती हूँ.
ओके, कैन आई राइट दिस एज 3/100? यस, हम लिख सकते हैं ना बच्चा. मैंने डेसिमल हटा के इसको क्या लिख दिया है, 3/100 लिख दिया, सो दैट मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाए. ओके, मूविंग फर्दर, या फिर अगर आप वैसे भी जा रहे हो ना तब भी हमारा कैलकुलेशन हम सिंपल कर सकते हैं. विल शो यू हाउ. सो मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 0.03 प्लस हाफ. एक्सेलरेशन कितना है, -5000, एंड टाइम कितना है बच्चा, 0.03 ब्रैकेट रेज टू होल स्क्वायर. नाउ लेट मी गो विद दिस कैलकुलेशन. कैलकुलेशन कैसे करना है चलो देखते हैं. डू यू नो 15 थ्रीजा कितना होता है, 45. यस, वेरी गुड. 15 थ्रीजा कितना होता है, 45 होता है. अच्छा बच्चा, इसके पास एक जीरो था, ये भी आ गया इधर. बट ये क्या, ये जो नंबर था, पीछे से आओगे तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है. सो यू विल बी टेकिंग दिस एज 4.5. समझ में आ रही है बात, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर. मैंने इसको क्या ले लिया है, 4.5. क्लियर. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, प्लस हाफ एज इट इज. अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यू कैन पुट माइनस साइन ओवर हियर. तो मैंने यहाँ पे साइन को क्या रख दिया, माइनस रख दिया. सो यस, यहाँ पे हमारी साइन क्या हो जाएगी, इट विल बी नथिंग बट माइनस. हाफ एज इट इज, 5000 को मैंने एज इट इज रखा है. पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, यस 9 होता है. बट यू सी दिस, दो है तो 0.03 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 0.03. 3 3 जा कितना हो गया, 9. बट इसके भी दो डेसिमल, दो डिजिट के बाद डेसिमल, और इसके भी. तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, कुछ इतना. गॉट इट हाउ टू गो विद दिस, 0.123 एंड देन 9. ओके, सो या कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट येस यू कैन इजीली गो विद दिस कैलकुलेशन. ओके, मूविंग फर्दर, चलो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते. सो हियर आई हैव 4.5. ओके, यू कैन राइट दिस एज 4.50 ऑल्सो. मूविंग फर्दर, हाफ से हमें इसको डिवाइड करना है. ओके, हाफ से डिवाइड करना है. बिफोर दैट एक और चीज़ मैं दिखाऊं, हाफ एज इट इज, 5000 एज इट इज. कैन आई राइट दिस एज 9/1 2 3 4. मैंने डेसिमल हटा दिया भाई. ट्राई टू प्ले विद डेसिमल्स. हाँ देखो, डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स आ रहे थे, 4. तो मैंने नंबर को एज इट इज लिखा और नीचे डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतना ही ज़ीरो लगा दिया जितना डेसिमल्स के बाद आते. एक कैंसिल, दिस सेकेंड वन ऑल्सो कैंसिल, एंड ये थर्ड वाला जो है ये भी कैंसिल हो गया. मूविंग फर्दर, वॉट यू कैन से, या तो अभी डिवाइड कर लो या तो फिर बाद में कर लो, इट्स वन ऑफ द सेम. 9 फाइजा कितना होता है, 45 होता है, राइट. सो या यहाँ पे हमारे पास है 4.50 माइनस, दिस विल बी नथिंग बट 9 फाइजा 45. 45 का आप मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे साइड में, बिकॉज स्पेस इशू है मुझे थोड़ा. सो मैं इधर साइड में करके दिखा रही हूँ. 9 फाइजा कितना हो गया बच्चा, 45. डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, एंड देन 10 है, इतना कुछ बचा है. तो 2 1 जा 2, और ये कितना हो गया, 22.5 हो गया. यस और नो. अच्छा, अभी भी तो 10 बचा है. इस 10 को हटाने के लिए हम डेसिमल को एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे. सो ये हो जाएगा 2.25. क्लियर है. सो यहाँ पे मुझे 2.25 इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. गॉट इट हाउ टू गो विद दिस. सो बच्चा, हमने क्या किया, सिंपली 4.5 को हम माइनस करेंगे 2.25 से. सो यू विल गेट समथिंग 2.25. ओके, मैं इसको, मैंने कैसे किया, 45, मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट ये आपको ध्यान रहे कि ओके. दिस इज अ रफ वर्क ऑफ दिस कैलकुलेशन. मूविंग फर्दर, सो यस यू कैन मेंशन देयरफॉर, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है, 2.25. लाइक डिस्टेंस जो अंदर वो पेनिट्रेट करेगा, इट इज़ 2.25 मीटर. यस, वेरी गुड. ओके,
So it's nothing but 2.25 meter. Moving further, they have also asked you for a force. So I'm changing the color so that you guys don't get confused with this. Force is nothing but calculate the magnitude of force exerted by a wooden plank. Mass into acceleration. What is the mass? Mass 0.01, and acceleration is like minus 5,000. सिंप्लीफाई दिस, आई कैन राइट दिस एज 1/1000. माइनस को हमने आगे ले लिया, ये है 5000. दो ज़ीरोस कैंसिल हो गए. कैन आई से इट एक्सर्ट अ नेगेटिव फोर्स, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है. इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ हाउ मच? -50 न्यूटन. सो एक्चुअल में फोर्स कितना है? 50 न्यूटन है. माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर है हाउ टू गो विद दिस? So yes, this is how you are supposed to go with this. If you have any doubt, ठीक है, तो वो आप comment section में post कर सकते हो. Will help you with this. Okay. So here displacement is nothing but 2.25 meter, whereas जो तुम्हारा force है वो कितना है बच्चा? वो हमारे पास दिया हुआ है -50 Newton. So yeah, negative sign shows opposite direction. Let me highlight this value. So I hope solution is clear to all. Thank you.